Welcome, welcome. Hi. Why have you all come with a Sunday energy? Oh, it's a Sunday, I know, but why? ठीक है, we're gonna just get some energy, right? We're gonna try and build some energy. What I'm gonna do is I'm gonna go back, I'm gonna come again, and you guys are gonna cheer or clap. It's like it's a favorite influencer or poet on stage. Are we set? Are we okay? Can we do that? Yeah. Lovely. See, that is what I'm talking about. This is the energy, you've maintained it, you've started it, you're going to maintain it throughout the show. Okay? Can I first request जो भी लोग पीछे बैठे हैं, please आगे आ जाए. Can you guys please come to the first row? It's not a comedy show, it's not a crowd work show. You can sit आराम से. There is a very technical reason for it. For all those who are performing, whenever you get your video, when you cut your video, you won't have anyone in the first row. And that's going to look odd for you. तो please आप आगे आ जाइए. अच्छा, first row पे कोई नहीं आएगा. Very cool. आप तीनों आना चाहेंगे आगे? You guys can come and sit here. There is nothing weird about sitting in the first row in a poetry open mic. Welcome to lovely. Thank you so much. Thank you. इज्जत रह गई मेरी. Lovely. How many of you are performing today? Can you raise your hand? Oh, lovely. And how many of you are for audiences who just come to watch? Can we hear it for the audiences, guys? Can we just, for people who come to listen to you? Very cool. Any first-time performers here? Oh, 3 of you. Can we hear it for the first-time performers also? जो लोग पहले आ गए Habitat में, they know how much we need to cheer for the first-time performers, right? Every time the first-time performer is on stage, we're going to cheer louder and higher and more than we've cheered before, right? Welcome to yet another open mic by Habitat on Sunday 1 p.m. We've got 4 open mics for poetry. Sunday 1 p.m., Sunday 3 p.m., Monday 7 p.m., Monday 9 p.m. For all those of you who are performing for the second time, third time, fourth time, they already know. But for the first time performance, I'll tell you. Basic rules है. 4 minutes is what you have to perform your piece. 4 minutes में आप 1 piece कीजिए, 4 piece कीजिए, 40 pieces कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. But stick to 4 minutes so that you don't take away someone else's time, right? वहाँ पे घड़ी है, that will be usually on 0. When you start, it will start ticking. You can keep a note of that. 3:30, 3:45 पे पीछे एक लाइट जलेगी, if you can see. वहाँ पे जैसे जल रही है अभी, that is your sign to wrap up your piece. You can perform in Hindi, English, whatever. Please avoid hate speeches, political speeches, क्योंकि हम वापस टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं ना ये जगह को. बार बार कौन कुर्सी लेके आएगा, है ना? तो please avoid all of that. For those of anyone who's performing in English, oh no, हाँ तो देखिए वो बता के फायदा नहीं है. Very cool. Please appreciate the performer on stage. वाह कीजिए, ताली बजाइए. Show them that you support the art. Show them that you support the artist. And yeah, that's about it. My name is Parth. I'm going to be hosting the session. आपके पास 4 मिनट है, मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है. मैं जितना चाहे सुना सकता हूँ. आपको सुनना पड़ेगा. You've signed up for it. ठीक है? Are we ready? Can we start? Can I have the names, please? Lovely. So I'm going to start with a poem of mine, and then we'll call the first performer on stage. Are we ready? Yes. This is your test to show how you're going to support the other performers. Okay? ऐसा भी एक दौर हो के ना मेज पे कुछ भी खाना है. ऐसा भी एक दौर हो के ना मेज पे कुछ भी खाना है. सपनों को जेबों में भरकर घर तक चलते जाना है. रात मुसलसल तन्हाई के कोड़े ही बरसाती है. खींचतान के ठंड के चलते चादर भी फट जाती है. ऐन वक्त पर सारे रिश्ते मुंह फेर कर बैठे हैं. दिल में धस कर रहते हैं नगमे. पांव के छाले कहते हैं वक्त बुरा है माना, माना अच्छे हैं हालात नहीं. वक्त बुरा है माना, माना अच्छे हैं हालात नहीं. बस ये कहकर चल दो आगे, ठीक है कोई बात नहीं. Lovely. Keep this energy alive for every performer that comes on stage. It's a 2-hour open mic, so please maintain your energy for 2 hours. ज़्यादा लोग है भी नहीं वैसे आज. Can we hear it for our first performer of the evening, Vidarbh? हाय, विदर्भ नाम है, पुणे से आया हूँ. ठीक है. मोहब्बत का महीना चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ मोहब्बत पे सुनाऊँ. ठीक है. इंट्रोवर्ट लोग जो मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, जैसे कि मैं, तो हमारी तरफ से कहा है कि मैं नहीं कह पाता तुमसे अपने दिल की बातें. मैं नहीं कह पाता हूँ इसलिए मैं लिख लेता हूँ. तो मैंने लिखा है कि तेरी कमी रहेगी मेरी ज़िंदगी में यार, सबको तुम ही दिखोगी मेरी शायरी में यार. तेरी कमी रहेगी मेरी ज़िंदगी में यार, सबको तुम ही दिखोगी मेरी शायरी में यार.
तुमको बता सकेंगे कितना मैं चाहता हूँ, वो शब्द ही नहीं है इस डिक्शनरी में यार, वो शब्द ही नहीं है इस डिक्शनरी में यार। कितने भी देख लूँ मैं चेहरे हसीन लेकिन, कितने भी देख लूँ मैं चेहरे हसीन लेकिन, ये दिल तुम ही पे आना है आखिरी में यार। हर बार सोचता हूँ तुमको बता ही दूंगा, हर बार सोचता हूँ तुमको बता ही दूंगा, मेरी दिल की भावनाएं इस फरवरी में यार। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गहरे प्रेम में है, ऐसे हर पुरुष का एक ख्वाब होता है कि अपनी माशूका को 7 जन्मों का वादा करना, जन्मों जन्मांतर का वादा करना, ठीक है। तब कहा था कि हर मुश्किल में हाथ तुम्हारा धरना है, हर मुश्किल में हाथ तुम्हारा धरना है, तेरे माथे पे कुमकुम को भरना है, कब तुम शादी के जोड़ों में आओगी, कब तुम शादी के जोड़ों में आओगी, तुमसे 7 जन्म का वादा करना है। और मेरे ख्याल से अपने पसंदीदा इंसान को बाहों में भर लेने से ज़्यादा अच्छी थेरेपी और कुछ नहीं हो सकती, खास करके तब जब आपके जीवन में मुश्किलें हो। तब कहा था कि हर एक वादा निभाने की तमन्ना है, मुझे ये रिश्ता बचाने की तमन्ना है, हर एक वादा निभाने की तमन्ना है, मुझे ये रिश्ता बचाने की तमन्ना है, मुझे ये रिश्ता बढ़ाने की तमन्ना है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, हर एक वादा निभाने की तमन्ना है, मुझे ये रिश्ता बढ़ाने की तमन्ना है, मैं एक अरसे से सुकून की तलाश में हूँ, मैं एक अरसे से सुकून की तलाश में हूँ, तुमको सीने से लगाने की तमन्ना है। और मोहब्बत का महीना चल रहा है, 14 फरवरी 2019 मोहब्बत का ही दिन था जब पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे जवान देश प्रेम के खातिर शहीद हो गए थे। तब कहा था कि नमी आँखों में सबके भर गए थे फरवरी में, नमी आँखों में सबके भर गए थे फरवरी में, कि अपना हक अदा वो कर गए थे फरवरी में, नमी आँखों में सबके भर गए थे फरवरी में, कि अपना हक अदा वो कर गए थे फरवरी में। मोहब्बत का महीना है उन्हें भी याद करना तुम, मोहब्बत का महीना है उन्हें भी याद करना तुम, ज़मी के वास्ते जो मर गए थे फरवरी में। और आखिर में फिर मोहब्बत पे छोड़ देंगे कि लोग कहते हैं ना कि एक तरफ हम पहली नज़र का प्यार को कई लोग नहीं मानते। और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत है कभी भी हो सकती है, पहली नज़र में भी हो सकती है, और 10 साल उस किसी के साथ रहो तो फिर भी नहीं हो सकती है ना। तब कहा था कि हर एक पत्थर यहाँ मंदिर की मूरत हो नहीं सकता, कोई भी चांद तुमसे खूबसूरत हो नहीं सकता, हर एक पत्थर यहाँ मंदिर की मूरत हो नहीं सकता, कोई भी चांद तुमसे खूबसूरत हो नहीं सकता, किसी से दिल लगाने को तो बस एक पल ही काफ़ी है, किसी से इश्क करने का मुहूर्त हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम। प्लीज वेलकम होस्ट। क्या बात है यार, मतलब मैं इतने टाइम से सिंगल हूँ कि मेरे को पता ही नहीं फरवरी का इम्पोर्टेंस क्या है जिंदगी। गिव कैन वी हियर इट फॉर विदर्भ, सच अ लवली लवली परफॉर्मेंस। विदर्भ, आप पुणे से आए हो? अच्छा, और आप मतलब पुणे में रहते हो या यहाँ रहते हो? पुणे में रहते हैं। और आप सिंगल हो या क्या है? हाँ, तो फिर बनता है, ठीक है, फिर तो मैं पूछ भी नहीं सकता। खैर, लेकिन बहुत अच्छे ख्याल सुना, बहुत अच्छे अशार सुना आपने। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मौजू जो भी हो, मोहब्बत हो या फिर कोई और बात हो, कोई ऑब्जर्वेशनल पोइट्री हो, आई थिंक पोइट्स इन जनरल हैव अ ह्यूज, आई डोंट नो इफ यू सीन दिस फिल्म कॉल्ड एयर। किसी ने एयर नाम की फिल्म देखी है? आपने देखी है? एनीवन एल्स हु सीन एयर? आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. एयर इज अ फिल्म अबाउट हाउ नाइकी साइंड माइकल जॉर्डन, राइट, फॉर मार्केटर्स एंड एडवर्टाइजर्स जो जाना चाहते हैं उसमें, इवेंचुअली उनके लिए। उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि पोएट्री इज गुड व्हेन यू वांट टू बेयर द वर्ल्ड, इंजीनियरिंग पुट अस ऑन द मून, राइट। पर हम ऐसे हालात में हैं जहाँ पे दुनिया को सहन करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो पोइट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मुनव्वर राणा साहब के 2 शेर है कि किया है अपने को बर्बाद शेर कहने लगे, जब आ गई उसकी याद शेर कहने लगे, न देख इतनी हिकारत से शायरों को कभी, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग गज़ल सुनने में इंटरेस्टेड है? हाँ, थैंक यू। नहीं भी होता तो मेरे को तो पढ़ना ही था, तुम लोग मेरा तो खैर। गज़ल सुनने का एक सलीका होता है कि जब कोई शायर सुना रहे तो पहले कहते हैं इरशाद, इरशाद कहते हैं। 3-4 शेर है आपके हवाले कर रहा हूँ कि उसी रास्ते पे बढ़ना चाहिए था,
उसी रास्ते पे बढ़ना चाहिए था, अगर था इश्क लड़ना चाहिए था। उसी रास्ते पे बढ़ना चाहिए था, अगर था इश्क लड़ना चाहिए था। नहीं तेरी खता कुछ भी नहीं है, नहीं तेरी खता कुछ भी नहीं है, मुझे पहले बिछड़ना चाहिए था। नहीं तेरी खता कुछ भी नहीं है, मुझे पहले बिछड़ना चाहिए था। बिगाड़ी जिंदगी यादों में तेरी, बिगाड़ी जिंदगी यादों में तेरी, तेरा एक दिन बिगड़ना चाहिए था। बिगाड़ी जिंदगी यादों में तेरी, तेरा एक दिन बिगड़ना चाहिए था। और जवानी है कहाँ घर में पड़े हो, जवानी है कहाँ घर में पड़े हो, किसी मुश्किल में पड़ना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। विद द सेम एनर्जी कैन वी प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज विपाशा जैन। विपाशा, आर यू फर्स्ट टाइम परफॉर्मर? कैन वी हियर इट लाउडर फॉर विपाशा? गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि अभी उन्होंने बताया, हमारे पहले परफॉर्मर ने कि अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, जो कि प्यार का महीना भी कहते हैं जैसे। उसी पे जैसे आजकल वैसे तो बहुत चलता है कि हम लव मैरिज पे जनरली ज़्यादा फोकस करते हैं या चाहते हैं कि पहले से लड़का लड़की एक दूसरे को जाने। बट जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो मैंने कुछ इस तरह लिखा है कि जब वो पहले का वक्त था कि जहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते नहीं थे, जहाँ माँ बाप उनको मिलवाते थे, तो उन्हीं को मैंने एक शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। तो मेरी कविता का शीर्षक भी कुछ इस तरह है कि वो पहली मुलाकात। तो लड़की इंतज़ार कर रही होती है लड़के का, जो उसे देखने आने वाला होता है, तो कैसे उसके मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो कुछ इस तरह होता है, लगा था दिल ज़ोरों से धड़कने, लगा था दिल ज़ोरों से धड़कने, हाथ पैर यूँ थर थर काँपने, एक अजीब सी बेचैनी थी, जाने हुए भी अनजानी थी। और इतने में ही वो लड़का आता है और इधर से गर्मा गर्म चाय भी आती है। तो अब माहौल कुछ इस तरह होता है कि वो थे हम थे और गर्मा गर्म चाय थी, कि वो थे हम थे और गर्मा गर्म चाय थी, पर उनकी एक झलक देखने को तिलमिलाए हमारी आंखें थी। जितना सोचा था हमने उससे भी वे कहीं खूबसूरत थे, सूरत के साथ साथ सीरत से भी वे कहीं भोले थे। ख़त्म हो गया था हमारा सबसे लंबा इंतज़ार, ख़त्म हो गया था हमारा सबसे लंबा इंतज़ार, जब सामने हमारे आ बैठे वो हमसे बातें करने दो चार। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करे, अरे उनसे उनके दिल का हाल पूछे या अपना बयां करे। कुछ ही क्षणों में निकली एक मीठी सी आवाज़, इतने में ही कुछ ही क्षणों में निकली एक मीठी सी आवाज़, दिल में हुई हलचल और भाग गया उनका वो अनोखा अंदाज़। उनकी आँखों ने ही सब कुछ बयां कर दिया, उनकी आँखों ने ही सब कुछ बयां कर दिया, अरे उनके कुछ कहने से पहले ही हमें उनका बना दिया। पहली बार हुआ था एक अलग सा एहसास, पहली बार हुआ था अलग सा एहसास, ऐसा जैसे कोई मिल गया दोस्त एक खास, ऐसा कोई रखेगा जो हमारा उम्र देगा, हमारा उम्र भर साथ रखेगा, हमारा पूरा ध्यान, था ये हमारा अटूट विश्वास। और इसी तरह हुई थी हमारी उनसे वो पहली मुलाकात, वो पहली मुलाकात। तो ये तो हो गया कुछ जो हम प्यार पे लिखा है। अब मैं एक कविता है, क्योंकि मैं मेरी दादी के बहुत क्लोज़ हूँ, तो ये मैंने उनके लिए लिखी थी। मुझे दादी ने ही मेरी बचपन से पढ़ाया है, तो मैं कभी उनको कह नहीं पाई, बट मैं आज ये कहना चाहती हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ, बचपन में जिनकी उंगली पकड़कर चलना है सीखा, बचपन में जिनकी उंगली पकड़कर चलना है सीखा, बचपन में जिनके कोमल हाथों से प्यार का निवाला खाना है सीखा हमने, बचपन में घंटों घंटों मेहनत कर आशा के बीज बोते देखा है जिनको, ज़िंदगी में अ से अनपढ़ से ज्ञ से ज्ञानी बनाते हुए देखा है जिनको, दुख भरे पलों में भी हंसी की किरण को जगाते देखा है जिनको, मौत के मुंह से बाहर निकलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं देखा जिनको, माँ से बढ़कर ज़िंदगी में ओहदा दिया है उनको हमने, माँ से बढ़कर ज़िंदगी में ओहदा दिया है हमने उनको, इसलिए दादी नहीं दादी माँ कहकर पुकारा है हमने उनको, पुकारा है उनको। थैंक यू सो मच। Such a sweet performance. Can we hear it for Vipasha once again?
क्या बात है विपाशा. विपाशा, आयु यार आज सब लोग प्यार व्यार पे सुनाने वाले हैं क्या? मैं थोड़ा बहुत मुझे वो फील होगा, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं. आर यू मैरिड विपाशा? यू नॉट मैरिड. ओके ओके. व्हाट डू यू डू? यू आर अ CA. ओह लवली. और आप इनके साथ आए हैं, दोस्त हैं? लवली. आई लव व्हेन पीपल कम टू सपोर्ट देयर फ्रेंड्स इन ओपन माइक्स. मेरा एक नहीं आता है कभी. मेरा एक दोस्त ऐसा नहीं है कि जो आएगा कि वो बोलेंगे सब कि जा जा पोएट्री कर, ये कर, वो कर, सुनने कोई नहीं आएगा. खैर, वेरी कूल. बहुत प्यारा सुना है विपाशा ने. मेरे पास खैर बतौर एक आर्टिस्ट वैलेंटाइंस के लिए कुछ भी नहीं है, पर एक गजल है. छोटा प्याला अच्छा था, छोटा प्याला अच्छा था, ख्वाब पे ताला अच्छा था. छोटा प्याला अच्छा था, ख्वाब पे ताला अच्छा था. इश्क मजाक में कह डाला, इश्क मजाक में कह डाला, क्या संभाला अच्छा था. इश्क मजाक में कह डाला, क्या संभाला अच्छा था. हर एक दौर को लगता है, हर एक दौर को लगता है पहले वाला अच्छा था. हर एक दौर को लगता है पहले वाला अच्छा था. दुनिया जैसा हो बैठा भोला भाला अच्छा था. दुनिया जैसा, हर एक दौर को लगता है पहले वाला अच्छा था. दुनिया जैसा हो बैठा भोला भाला अच्छा था. बातें कड़वी करता था, बातें कड़वी करता था, शायर साला अच्छा था. With the same energy, can we hear it for Atharv Nigam? First time performer on stage, guys. Can we clap harder? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा नाम अथर्व है. मैं एक नज़्म सुनाऊंगा आप लोगों को, एक ऐसे मसले के ऊपर कि कभी भी किसी इंसान से आपका अगर रिश्ता ख़त्म होता है तो कभी कभी होता है कुछ सवाल आपके मन में रह जाते हैं, कुछ बातें पूछनी होती हैं, कुछ बातें कहनी होती हैं. कभी आपको उस शख्स का एक मैसेज याद रहता है जिसने कहा था कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी तुमको, और फिर एक वक्त आता है जब वो शख्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता. तो मैं चाहूँगा आप लोग ये सब, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है तो उसको सोचते हुए ये नज़्म को सुने मेरे ज़रिए. तो ऐसा है कि कुछ सवाल हैं मन में, जवाब दे दो. अच्छा छोड़ो रहने दो, कान मीठे करने के लिए दो अल्फाज दे दो. पूछो कैसे हो, मैं कहूँगा ठीक नहीं, हाल मेरा दिल से लेना, पिछली बार की तरह भीख नहीं. सालों साल बात नहीं रुकती थी जिनसे, अब सालों से बात रुक गई है. पूरे मोहल्ले में शान से चलने वाली छवि घर के शीशे के सामने झुक गई है. और फिर वो तेरी छुपती सी बातें, वो बातों में पर्दा, वो महकती सी महफिल, तू महफिल का जर्दा. कि वो तेरी छुपती सी बातें, वो बातों में पर्दा, तू महकती सी महफिल, वो महकती सी महफिल, तू महफिल का जर्दा. पोछे थे आंसू जिससे वो रुमाल संभाल रखा है, तू वापस आएगी इस खातिर अधूरा बवाल संभाल रखा है. वो मेरे ख्याल ख्याल हज़ार, अच्छे बुरे हर हाल हज़ार, वो दिल के मेरे मलाल हज़ार, मलालों के बीच सवाल हज़ार, और उन सवालों का इनकार करती तुम. आज भी नींदों में मेरे झनकार करती तुम. सुकून भरी रातें थीं जब तुमसे बात करके सोता था, हसीन मुलाकातें थीं जब बस तुम्हें गले लगा के ही कुछ कुछ होता था. ये सारी बातें जो दोहरा रहा हूँ मैं, क्या कुछ नहीं थीं? ये देख क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, तू वो सचमुच नहीं थी. ये लोग जो कहते हैं धोखा दिया तूने मुझे, इन मासूमों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था. वादा तूने कोई नहीं तोड़ा था मेरी जान, तेरे दिल में कभी मोहब्बत का इरादा ही नहीं था. और तुम कहती हो मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे, और तुम कहती हो मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे, तो आज भी तुम्हारी दराज में मेरी दी हुई जंजीर क्या कर रही है. एक दफ़ा मैंने उसे एक पायल दी थी कि तुम कहती हो मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे, फिर आज भी तुम्हारी दराज में मेरी दी हुई जंजीर क्या कर रही है. और मैंने भी कह दिया था सभी से कि मैं भुला चुका हूँ तुझको, फिर ये बता कि आज भी मेरे बटुए में तुम्हारी तस्वीर क्या कर रही है. खौफ में भी ना सोचा था तुझे कभी खोना पड़ जाएगा, आधी रात सीने में दर्द लेके यूं रोना पड़ जाएगा. हाँ रोने लगा हूँ अब मैं, वक्त बेवक्त सोने लगा हूँ अब मैं. तुझे जो ना पा सका इस बात का हिसाब ऊपर वाले से लूँगा, पर पिछले कुछ वक्त से खुद को भी खोने लगा हूँ अब मैं. कि क्या इतना बुरा था जो बीच था हमारे, कि क्या इतना गुनाह था जो इस कदर हम हारे. चल इस सवाल को पीछे छोड़ता हूँ, आज़ाद कर तुझको मैं अपना मुंह मोड़ता हूँ. पर ये बताओ मिल गए फिर कभी सागर किनारे, फिर से गीत संग गुनगुनाओगे क्या,
या पराया सा चेहरा समझ के मुझे तुम नज़रअंदाज कर जाओगे क्या? ये तुम्हारे लिए महज ये एक सवाल है, पर रोज़ रात को मैं ये फ़िल्म दोहराता हूँ कि चल के आई किसी दिन तुम मुझे अपनाने के खातिर। ये बोल बोल मैं अपनी किस्मत को धमकाता हूँ कि दिन तो बुरे देखे बहुत, पर अभी तो देखना अपनी बर्बादी बाकी है। अभी तो तस्वीर में सिर्फ एक गैर हाथ थामे देखा था, अभी तो किसी किस्मत वाले से तेरी शादी देखना बाकी है। और जिस रोज़ आएगी बारात तुझे लेने, उस शाम का देर से सवेरा होगा। तू बन जाएगी बीवी किसी और की उस दिन, मगर मेरी जान तू प्यार हमेशा मेरा होगा। और ये सब बस ख्याल में है, और ये सब बस ख्याल में है मेरे, इन बातों का कोई वजूद नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तू मेरे साथ मौजूद नहीं है। बहुत कोशिश करी मैंने, हर मंदिर मस्जिद में जाके तेरे नाम की दुआ चढ़ाई थी। हर मज़हब का खुदा आके मुझे कह गया मान जा वो लड़की पर आई थी। ऐसे मझधार में पहले कभी मैं फंसा ना था, सर पे कफन बांधकर फिर उठने को तैयार मैं, पर बचाने को अब कुछ बचा ना था। तेरे संग गुजरे लम्हे घूट घूट कर पी रहा था, एक एक रात वो आंसू धोते हुए लम्हे सींच के जी रहा था। मगर देख न ज़ख्म भरा न शराब सहारा हुई, मगर देख न ज़ख्म भरा न शराब सहारा हुई, ना तू लौटी और न मोहब्बत दोबारा हुई। क्या बात है यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को गलती से 14 फेब का होस्टिंग मिला होता मैं बर्बाद हो जाता। मैं क्या ही बात करता उस दिन। बहुत, एक बार जोरदार ताली। फर्स्ट टाइम परफॉर्मर एंड सच अ लवली लवली पीस। क्या करते हो अथर्व आप लिखने के अलावा? मैं जॉब करता हूँ नवी मुंबई में। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, मैं भी हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है कि क्या है। इन्होंने जो नज़म सुनाया ना, उसके ऊपर से मेरा एक थॉट है। एक बहुत पुरानी नज़म लिखी थी मैंने। डू यू गाइज नो द आइडिया ऑफ शिप ऑफ थीसिस? किसी को नहीं पता है? कोई है यहाँ पर शिप ऑफ थीसिस के बारे में? आपको नहीं? हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ शिप ऑफ थीसिस इज कि मान लीजिए एक टापू से, एक आइलैंड से एक शिप निकली है एंड इट इज गोइंग टू अनदर आइलैंड, राइट? और बीच बीच में उसके एक एक पार्ट जो है, एक एक पीस चेंज हो रहे हैं बिकॉज खराब हो गया है, जो भी हो गया, एक एक लकड़ा, एवरी पार्ट ऑफ इट ऑन द जर्नी इज बीइंग चेंज्ड। तो जो दूसरे आइलैंड पर पहुंचती है, क्या वो वही शिप है या फिर वो नई शिप है? हाउ डू यू से? बिकॉज जो शुरू हुई तो वो तो वही है, पर सिर्फ पार्ट बदले हैं। इट्स अ पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन, राइट? यू कैनॉट रियली गिव एन आंसर टू इट। या तो वो नहीं है या तो फिर वही शिप है जिसके पार्ट्स चेंज हुए। द मेटाफर फॉर दिस इज व्हाट हैपेंस इन रिलेशनशिप्स. Once you're out of certain relationship, a part of you changes. And then you get hurt somewhere, you're out of some other relationship. दोस्ती, घर वाले, प्यार, हर तरह के रिश्ते से जब आप बाहर निकलते हो, आपके अंदर एक हिस्सा चेंज होता है. Until the point when everything inside you changes, then how do you say if you're the same person or you're a new person altogether? Right? उसके ऊपर ये नज़म लिखी थी मैंने कि गुजर गया वो दौर भी, वो वक्त यहाँ गुजर चुका. गुजर गया वो दौर भी, वो वक्त यहाँ गुजर गया. मैं क्या कहूँ, मैं अपना गम लिए किधर किधर गया. न जंग मेरी दिल से थी, न अक्ल से ही बैर था. तुम्हारे बिन तो खुद मेरा जहन भी जैसे गैर था. न दोस्तों की थी कमी कि जिनके आगे रो पड़ूं, था दुश्मनों का साथ भी कि जाके बेवजह लड़ूं. मुझे तो ये यकीन था कि सोज़े गम मिटा नहीं, वक्त जो होता है गम का. मुझे तो ये यकीन था कि सोज़े गम मिटा नहीं. ये दर्द ऐसा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं. फिर एक रोज यूं हुआ कि होके आंसुओं से तंग मैं घर से ही निकल पड़ा कि जैसे छिड़ गई हो जंग. इस जंग में विसालो हिज्र का जिक्र ही था नहीं, मिलने बिछड़ने का. इस जंग में विसालो हिज्र का जिक्र ही था नहीं. मैं तुमको भूल ना सका पर याद भी किया नहीं. मैं तुमको भूल ना सका पर याद भी किया नहीं. मगर मुझे मोहब्बतों से कोई भी गिला नहीं. मैं खुद से मिल सका तभी जो तुमसे मैं मिला नहीं. तो अब वो गम रहा नहीं, वो वक्त यहाँ गुजर चुका. तो अब वो गम रहा नहीं, वो वक्त यहाँ गुजर चुका. तुम जिससे मिलने आए हो वो आदमी तो मर चुका. बहुत शुक्रिया. और इन्हीं तालियों के बीच कैन वी हियर इट फॉर अ नेक्स्ट परफॉर्मर, रितेश. आइए रितेश. सभी को नमस्कार. मेरा नाम रितेश उपाध्याय है और जब मैं अपने मोबाइल में रितेश टाइप करता हूँ तो वो देशमुख सजेस्ट करता है. खैर, इसके पहले मैं फ्रेमलेस चश्मा पहनता था तो फ्रेम के नाम पे बस एक डंडी होती है लोहे की, तो उसका किसी दिन वो ग्लास टूट गया. मैंने नए ग्लास डलवाए, फिर उसका फ्रेम एक दिन टूट गया तो मैंने नए फ्रेम लगवाए. पता नहीं वो फिर नया चश्मा रहा या पुराना चश्मा रहा.
तो वो कहता है कि स्टेटस मेंटेन हर चीज से हो। वो कहता है कि स्टेटस मेंटेन हर चीज से हो, एक्सीडेंट भी हो तो मर्सिडीज से हो, एक्सीडेंट भी हो तो मर्सिडीज से हो। और इस शर्त पे हाले दिल बयां न किया, इस शर्त पे हाले दिल बयां न किया कि उसका इनकार भी हो तो जरा तमीज से हो। और खुदा करे कि सेल्फी का दौर और बढ़े, खुदा करे कि सेल्फी का दौर और बढ़े और बढ़े और बढ़े, कि कोई जुर्म भी हो तो फोटो खींच के हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस हिसाब से सुन रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ माहौल बना हुआ, वो एकदम अनबयानेबल है। तो हाँ, तो आगे का ये है कि सत्ता, दौलत, ताकत, शोहरत सब हो तो लगता है सब रहेगा ही रहेगा। और तुम्हारी ये अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत की चालें कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना जो चलेगा ही चलेगा। और मेरा कचरे वाला रोज मुझसे कचरा मांगता है, मेरा कचरे वाला रोज मुझसे कचरा मांगता है। वो जानता है कि ये इंसान है, कचरा तो करेगा ही करेगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और 20वें माले पे चींटियों को देखकर मैंने सोचा, 20वें माले पे चींटियों को देखकर मैंने सोचा कि जब मेरे घर में चीनी है तो चींटियों के कान कोई ना कोई तो भरेगा ही भरेगा। ठीक है, और घटनाओं और दुर्घटनाओं को इस कदर नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जैसे गीता का वाक्य हो, जो पैदा हुआ वो मरेगा ही मरेगा। शुक्रिया। और मेरे देश के विषय भी बड़े विशेष होते हैं, मेरे देश के विषय भी बड़े विशेष होते हैं। विज्ञान उज्ञान नहीं, कभी औरंगजेब, कभी मैकाले, तो कभी नरेगा ही नरेगा, कभी नरेगा ही नरेगा। और कुछ जला है, कुछ जलाया गया है, कुछ जला है, कुछ जलाया गया है, होनी को हादसा बताया गया है। कुछ जला है, कुछ जलाया गया है, होनी को हादसा बताया गया है। गरीबी, बीमारी, ईमान, धर्म, सबका फायदा उठाया गया है, सबका फायदा उठाया गया है। और सच को पोस्टर में लपेटा गया है, सच को पोस्टर में लपेटा गया है, झूठ को नारा बनाया गया है। जो सवाल था ज़मीर का कभी, आज उसको साजिश बताया गया है। शुक्रिया। और आंसू गिने गए सिक्कों की तरह, आंसू गिने गए सिक्कों की तरह दर्द को सौदा बनाया गया है। और भूख ने मांगा था बस एक निवाला, उसे सब्र सिखाया गया है। तो 2014 से फिर अब लगता है 2047 में अच्छे दिन आ ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। देखो, जो भी है ये मैंने नहीं बोला है, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देख लो कि मैंने नहीं बोला है। एक बार जोरदार तालियां रितेश भाई के लिए। बड़ा अनबयानेबल परफॉर्मेंस है रितेश भाई, क्या बात है यार। आपने जो आके एक प्यार से निकल के मूड चेंज किया, मेरा बहुत फायदा हो गया। अब भाड़ में गया, मेरे को अब अलग ही सुनाऊंगा मैं कुछ, जिसको जो सुनाना है सुनाओ। क्या करते हो रितेश भाई आप? हाँ, फिर तो ये दर्द निकलना बनता ही बनता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत हास्य कविता का जो माहौल बांधा है, बीच में जो तंज की सुरसुरी छोड़ी है, क्या बात है। तो इनका ही फ्लेवर कंटिन्यू करते हुए, इनका मूड कंटिन्यू हुए, मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनेंगे? एक सेकंड में बैठ के सुनो। किसी को ऐसा लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर? कोई मानता है क्या उसमें? कितने साल के हो भाई आप? 22 ना? 30 के ऊपर हो। जो पीठ का दर्द शुरू होगा, जो घुटनों का दर्द शुरू होगा, फिर बताना एज इज जस्ट अ नंबर। खैर, हाँ, तो आप में से कोई दिल्ली से कभी ट्रेन में मुंबई आया है? आप लोग आए हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा, माहौल में समझ पाएंगे। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि आपके इल्म का गुरूर, द ईगो ऑफ योर नॉलेज, आपके सर चढ़कर बैठा हो, तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बंबई का सफर ट्रेन में तय कर लेना। पुल के ऊपर से सीढ़ियों से गिरता हुआ मेरा सामान नीचे पहुंचा।
लोग ऐसे घूरने लगे मानो बैग नहीं मुल्क की जीडीपी गिर गई हो। मैं चुपचाप बैग को उठाकर बंबई के लिए रवाना होती ट्रेन में चढ़ गया। अपनी सीट की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर से ही मुझे वाह 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 की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर कलेजे को ठंडक मिली। चलो महफिल जमाने वाले मुसाफिर है। दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में अदब या लिटरेचर का प्रोफेसर होने के नाते सुखन या शेरो शायरी मेरे लिए पानी पीने जितना ज़रूरी था। मैंने अपनी सीट पर पहुंचकर देखा कि एक 50-55 साल के चचा मेरी सामने वाली सीट पर बैठे हैं और आसपास 3 नौजवान जो 30-35 के मालूम होते थे उनके हर मिसरे पर वाह वाह कर रहे थे। मैं सीट पर पहुंचा तो चचा ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरी ही सीट पर मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाई। मैंने सोचा शुक्रिया कह दूं, पर किस बात के लिए? उन्होंने अपने मुंह में रखे पान को जरा सरका और मिसरा उठाया। अर्ज है, दिल दुनिया और दौलत को एक पल में खोना होता है। दिल दुनिया और दौलत को एक पल में खोना होता है। मैं बहर या मीटर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उन्होंने पूरा शेर फेंक कर मारा। दिल दुनिया और दौलत को एक पल में खोना होता है, महल में उठने वाले को भी कब्र में सोना होता है। आप ही की तरह तीनों चेले ऐसे वाह वाह करने लगे जैसे चचा ने जिंदगी जीने का कोई मंत्र सुना दिया हो। खैर, मैं समझ गया कि स्टेशन पर बैग के साथ साथ मैं अपनी तकदीर भी गिराया था जिसे उठाना मैं भूल गया। शेर कहकर उन्होंने खिड़की के बाहर एक पान की पिचकारी छोड़ी। मैंने झट से कहा, चाचा यूं पान खाकर बाहर थूकना अच्छा लगता है? उन्होंने झट का जवाब पट से दिया, नहीं, पर अंदर थूकना और बुरा लगता है। सारे हंस दिए। चचा ने मुझसे मेरे और पूछा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, मैं अदब का प्रोफेसर हूं, बड़े बड़े शायरों की गजलें और नज़में मुझे ज़बानी याद है। बड़े बड़े शायरों की गजलें और नज़में मुझे ज़बानी याद है। किसी का तो फोन बज रहा है और मुझे सुर मिल रहा है। आपका नहीं है? अच्छा, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं कहा था बड़े बड़े शायरों की गजलें और नज़में मुझे ज़बानी याद है। चाचा ने कहा, इरशाद। तो मैंने जॉन साहब का शेर उठाया। हासिल एक खुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। सबके सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे एक राज्य की जनता ये समझने की कोशिश कर रही हो कि सरकार आखिर है किसकी। प्लीज इसे हकीकत ना समझे। 10 सेकंड की खामोशी के बाद चाचा ने वाह वाह कहकर मेरी हौसला अफजाई, या शायद जॉन साहब की हौसला अफजाई की, पता नहीं, एक हसीन माशूक के पैरों में बंधे पाजेब में लगी छोटी घंटियों से भी हल्के इशारों का सिलसिला कुछ देर और चला। तो अर्ज है, खुशी के पिटारे में भरकर दुख बांट रही है। खुशी के पिटारे में भरकर दुख बांट रही है। हम जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी हमारा काट रही है। मुझे यकीन था कि मिर्जा गालिब इस वक्त अपनी कब्र से निकलकर बगल में एक और कब्र खोदकर फिर से लेट गए होंगे। सुनते सुनते रात हो गई। चेले अपनी अपनी सीट पर चले गए। चचा मुझसे मुखातिब हुए कि मैं एक बात बताओ, ये जो शायर होते हैं ये इतने मुश्किल अल्फाज जोड़कर बातें क्यों करते हैं? ऐसी जो सर पर रखी टोपी के ऊपर से निकल जाए। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहा, चाचा, शायरों की कौम पढ़ी लिखी कौम होती है। अच्छे शायर ना हल्का लिखते हैं, ना सोचते हैं, ना कहते हैं। यही हुनर होता है, 2 मिसरों में बड़ी से बड़ी बात को बांध कर कह देना। तो आपस में क्यों नहीं कर लेते महफिल? नहीं, मतलब बुरा मत मानना, पर मुल्क की आवाम तो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, और बड़ा मुंह बड़ी बात, पर वो आर्ट किस काम का जो मुल्क के आम आदमी के जहन तक पहुंचे ही नहीं। देखिए, जितना आदमी है, जितना आर्टिस्ट है ना, उन पर एक जिम्मा है वक्त बदलने का। अब मसला ये हो गया है कि वक्त बताने वाली घड़ी स्मार्ट हो गई है और वक्त बदलने वाले लोग बेवकूफ़। वक्त बदलने वाले लोगों को ये नहीं पता कि वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ थोड़ी दूर तक चलना पड़ता है। नहीं, आप यकीनन बड़ी बड़ी महफिलों में बड़े बड़े शायरों के बीच अपना खूबसूरत कलाम जरूर पढ़े, मगर तमिल बोलने वाले आदमी को केम छो मजाओ बोलोगे तो उसे खाक समझ में आएगा। वैसे तो चचा की हर बात मैं गुजरते हुए स्टेशन पर छोड़ देता, मगर यह बात मेरी जहन की गहराई में बैठ गई। सारी रात मैं इसी बात पर गौर करता रहा। सुबह जब बंबई पहुंचा तो चचा को देखकर मुस्कुराया, अपना सामान उठाया, उन्हें अलविदा कहकर चल दिया। ट्रेन से उतरते वक्त मेरा सामान फिर स्टेशन पर गिर पड़ा। तो पीछे से आवाज आई, अरे मियाँ संभल कर उठा लो, सामान ही तो है। लोग तो गिरी हुई तकदीर भी उठा लेते हैं। यकीन मानिए, मेरे गुरूर के गुब्बारे में इतने छेद हो गए थे कि फूंक मारूं तो गजलों के नाम पर बस हवा निकल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। बजाते रहिए, कोई बात नहीं, मैं टेबल उठाऊं। देखिए, आपका काम है ना बतौर ऑडियंस गैप्स को भी फिल करना है। तो अगर ऐसा कोई मोमेंट हो रहा है जहां आदमी टेबल रख रहा है, तब तक ताली बजाते रहिए। तो क्या है उसमें गैप फिल, नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट टाइम याद रखना, कोई चलकर आ रहा है तो एक ऑकवर्ड गैप हो जाता है ना परफॉर्मर के लिए भी। कैन वी हियर इट फॉर अ नेक्स्ट परफॉर्मर, अक्षय नायक। आइए अक्षय, आराम से आइए, स्लो आइए, एक बार मेरे को देखना है ये लोग कितना टाइम बजाते हैं। हाँ, आप सभी को मेरा तहे दिल से जय श्री राम। मैं अपना इंट्रो अपने लफ्ज़ों में दे दूं या नॉर्मल बता दूं? तो चलिए लफ्ज़ों में बता देता हूं
कि शब्द वो लिखो जो लिखने के लायक हो, शब्द वो लिखो जो लिखने के लायक हो, काश ये दुनिया कहे कि आज की महफिल में अक्षय नायक हो। मैंने भोपाल शहर पे कुछ लिख कर लाया हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बटोर कर लाया हूँ, उन चीज़ों से तू पर्दा हटा, मैं अपने ख्वाब लेकर आया हूँ। मैंने खुद का शहर छोड़ा और मैंने माँ का आंचल छोड़ा, मैंने खुद का शहर छोड़ा, मैंने माँ का आंचल छोड़ा, देख मैं कितने दर्द सह कर आया हूँ। और तेरे इस शहर को सपनों का शहर कहते हैं, तेरे इस शहर को सपनों का शहर कहते हैं। मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी मैं एक छोटी बस्ती से चल कर आया हूँ। और आप बैठ कभी मेरी महफिल में, और आप बैठ कभी मेरी महफिल में तो पता चले मैं अपने ख्वाबों का पिटार अपने साथ लेकर आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इश्क मोहब्बत पे बहुत लोग सुनाते हैं, मैं भी सुना दूँ कि चल तेरे मेरे इश्क का बंटवारा करते हैं, कि चल तेरे मेरे इश्क का बंटवारा करते हैं, तू याद नहीं आएगी ये वादा करते हैं। मैं तेरे बिना जी तो नहीं पाऊंगा, चल जीने का किनारा करते हैं, कि मैं तेरे बिना जी तो नहीं पाऊंगा फिर भी जीने का किनारा करते हैं। छोड़ना यार पुरानी बातें, चल इश्क दोबारा करते हैं। अब इसी के साथ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे कुछ लिखा था, वो सुना देता हूँ कि मेरे बगल में बैठी एक लड़की, प्लीज़ थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, मज़ा आएगा, कि गौर फरमाइएगा कि मेरे बगल में बैठी एक लड़की मेरे कॉलेज की शिक्षिका निकल गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखते देखते मेरी सारी रात निकल गई। मैंने पूछा उसके प्रेमी के बारे में, तो उसने कहा बेटा अब तक तो मैं सिंगल रह गई। मैंने सोचा चलो मामला सेट हो गया, मैंने सोचा चलो मामला सेट हो गया। तब पता चला वो मेरे कॉलेज की शिक्षिका निकल गई। आई वो पहले लेक्चर में तो पता चला दोस्तों वो तो शादीशुदा निकल गई। मैंने कहा मैडम आप मेरी कहानी में बेवफा निकल गई। उसने कहा ऐसा नहीं है बेटा। तब मेरे दोस्त से पता चला कि वो 2 बच्चों की माँ निकल गई। और मेरे बगल में बैठी एक लड़की मेरे कॉलेज की शिक्षिका निकल गई। सो इसी के साथ मैं एक और सुनाना चाहूँगा कि लोग कहते हैं ना कि फ़र्क बहुत देखा जाता है अमीरी और गरीबी में। तो मैंने लिखा था कि सूरज की गर्मी सहन नहीं होती, सूरज की गर्मी सहन नहीं होती, घर की एसी कभी कम नहीं होती। और तुम्हें क्या पता साहब धूप में एक बार निकल कर तो देखो, और तुम्हें क्या पता साहब धूप में एक बार निकल कर तो देखो, 2 वक्त की रोटी ऐसी ही नसीब नहीं होती। सो इसी के साथ एक बस छोटा सा है कि मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने लिखा था, 1 सेकेंड सॉरी, कि बस मेरे पास टाइम बहुत कम है, बस एक लास्ट है कि कहते हैं ना कि मोहब्बत लड़कियों में कभी चीट नहीं करती जो बहुत इस दायरे से निभाती हैं, तो मर्द तो कहते हैं ना उन पर सब कुछ लौटा देता। तो मैंने भी लिखा था कि मैं उसके सारे नखरे उठा लूँगा, मैं उसके सारे नखरे उठा लूँगा, वो किसी एक की होकर दिखाए। और जनाब मैं वो हूँ जो भरी महफिल में उसे दौलत से तोल दूँगा, हर लड़के की होने से पहले मेरी होकर दिखाए। तो थैंक यू सो मच। क्या बात है अक्षय, जोरदार तालियां अक्षय के लिए। क्या चल रहा है ब्रो आपकी लाइफ में? ये क्यों आप शिक्षिका के इसमें? मेरे को 2 मिनट ओपन माइक साइड में रखते हैं, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जेन्युइनली। मेरे को टाइमलाइन समझ में नहीं आया, ठीक है? आप वो बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा वो सिंगल निकल गई, फिर वो शादीशुदा कैसे निकली? नहीं वो तो ठीक है, रात में तो चल, मैं तो मान लिया, सब मान लिया, पर मेरा सवाल ये है कि एक तो उन्होंने जब बोला बेटा मैं सिंगल निकल गई, तभी आपको कैसे लगा कि आपका चांस है? ठीक है, जब अच्छा बेटा बोल दिया, ठीक है, एक बार जोरदार ताली अक्षय के लिए। देखो वैलेंटाइंस में जब माथा फिरता है सिंगल आदमी का, तब क्या क्या हो सकता है। खैर बहुत अच्छा सुना अक्षय आपने। एक गजल और सुनाता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो दिल ये लग बैठा है दुनिया के वीराने में, अब तो दिल ये लग बैठा है दुनिया के वीराने में, तुमने कितनी देर लगा दी वापस लौट के आने में, तुमने कितनी देर लगा दी वापस लौट के आने में। चादर भी है बेसिलवट और अलमारी भी खाली है, जो बाहर से आया है किसी और शहर से है। चादर भी है बेसिलवट और अलमारी भी खाली है, कोई फर्क तो होता होगा घर में और ठिकाने में, कोई फर्क तो होता होगा घर में और ठिकाने में। जालिम वाइज मूर्ख नेता
गलियों में मिल जाएंगे। जालिम, वाइज, मूर्ख, नेता गलियों में मिल जाएंगे। शायर ढूंढने वाले आओ बस्ती के मैखाने में। शायर ढूंढने वाले आओ बस्ती के मैखाने में। एक तो अपनी बेफिक्री फिर यार मिले हैं ऐसे जो। एक तो अपनी बेफिक्री फिर यार मिले हैं ऐसे जो मेरे गम को भूल गए हैं अपने गम गिनवाने में। मेरे गम को भूल गए हैं अपने गम गिनवाने में। और वो जो मेरी दुनिया है, देखिए शायरी के लहजे में धमकी कैसे देते। मेरे गम को भूल गए हैं अपने गम गिनवाने में। वो जो मेरी दुनिया है तू उसकी दुनिया है वरना। वो जो मेरी दुनिया है तू उसकी दुनिया है वरना। मुझको कितनी देर लगेगी तेरे राज बताने में। तुमने कितनी देर लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप दिस, लेट्स स्टार्ट विद द सेम एनर्जी यस दैट वी स्टार्टेड ऑफ विद। कैन वी हियर इट फॉर आलोक। आइए आलोक, आराम से आइए एक सेकंड। मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है और मैं आपको छंद मुक्त कविताएं सुनाने जा रहा हूँ कुछ। यस, इसमें राइमिंग नहीं होगी। तो कविता का शीर्षक है मैं ज़िंदगी का व्यसन। व्यसन मीन्स एडिक्शन, लत। मैं ज़िंदगी का व्यसन। प्रतिदिन वही सुबह, वही दोपहर, वही रात, वही जागना, वही सो जाना, वही हंसना, वही डर जाना, वही जीतना और उसी में हार जाना, वही दौड़ना, वही भागना और फिर बस मर जाना। ज़िंदगी में कोई गहरा मानी नहीं और जीने का कोई उद्देश्य मुझे मिला नहीं और ना ही ना जी पाने का साहस है। शायद तभी जीवित हूँ, शायद तभी जीवित हूँ, या जीवित हूँ क्योंकि हर रोज़ कोई चिंगारी मुझ में डाली जा रही है। या जीवित हूँ क्योंकि हर रोज़ कोई चिंगारी मुझ में डाली जा रही है। कभी किसी स्वप्न की तरह, कभी किसी वादे में छुपकर, या कभी किसी जिम्मेदारी की शक्ल में, या कभी किसी जिम्मेदारी की शक्ल में। ये चिंगारियाँ मुझे भीतर तक खींचती हैं जैसे मैं कोई ताज़ा भरा जॉइंट हूँ। ये चिंगारियाँ मुझे भीतर तक खींचती हैं जैसे मैं कोई ताज़ा भरा जॉइंट हूँ जो हर सुबह सुलगता है बिना इच्छा, बिना प्रतिरोध, जैसे मेरा होना ही ज़िंदगी की ज़रूरत हो। वो जो हर सुबह सुलगता है बिना इच्छा, बिना प्रतिरोध, जैसे मेरा होना ही ज़िंदगी की ज़रूरत हो। गांजे के जॉइंट सा सुलग रहा हूँ मैं और ज़िंदगी मुझे फूंक कर नशे में है। गांजे के जॉइंट सा सुलग रहा हूँ मैं और ज़िंदगी मुझे फूंक कर नशे में है। वो मुझे फूंकती है मेरी चेतना को, मेरी जिजीविशा को, मेरे अस्तित्व की आखिरी परत तक। वो मुझे फूंकती है मेरी चेतना को, मेरी जिजीविशा को, जिजीविशा मतलब विल टू लिव, मेरी चेतना को, मेरी जिजीविशा को, मेरे अस्तित्व की आखिरी परत तक। हर कश के साथ ज़िंदगी अपना बोझ हल्का करती है और मुझे करती जाती है खोखला। हर कश के साथ ज़िंदगी अपना बोझ हल्का करती है और मुझे करती जाती है खोखला। मैं अब ज़िंदगी का व्यसन बन चुका हूँ। मेरा होना और कुछ भी नहीं, मात्र जलने की प्रक्रिया है, एक क्रमिक क्षय, एक मौन विसर्जन। ये दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है स्वप्नों का यज्ञ। कि मेरे सारे स्वप्न मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। मेरे सारे स्वप्न मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। बस हर स्वप्न में बस मृत्यु का द्वार है। अब हर स्वप्न में बस मृत्यु का द्वार है। लगता है जैसे मेरा स्वप्न ही मृत्यु का द्वार है। यथार्थ का यज्ञ स्वप्नों की आहुति मांगता है। यथार्थ का यज्ञ स्वप्नों की आहुति मांगता है। आहुति दे दी गई, आहुति दे दी गई। यज्ञाग्नि अब प्रचंड है, यज्ञाग्नि अब प्रचंड है। प्रत्येक स्वप्न अग्नि में झुलस कर बस राख हो गया है। जो मेरी आंखों में आकाश था उस राख के शमशान में कहीं खो गया है। अब संवेदनाएं थक कर सो गई हैं। अब न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, न कोई विचार, बस एक शून्य है जिसमें देखता हूं खुद को सुहा होते हुए अंतिम यज्ञ की निर्विकार ज्वाला में। एक और कविता है, उसका शीर्षक है अंतर्द्वंद। मेरे भीतर दो सभ्यताएं लड़ रही हैं। मेरे भीतर दो सभ्यताएं लड़ रही हैं। एक तृष्णा है, एक तृष्णा है जो कहती है अभी भूख और है। एक शून्यता है जो कहती है सब व्यर्थ है, बस शांति ही सत्य है। मैं इन दो ध्रुवों के बीच खिंचा हुआ एक सेतु हूं जो टूटने ही वाला है पर जिसका टूटना भी वर्जित है। मेरा मस्तिष्क अब विचारों का केंद्र नहीं, एक युद्ध स्थल है जहां हर क्षण एक तर्क दूसरे तर्क की हत्या करता है। इस घर्षण से जन्मी ऊर्जा मुझे भीतर तक जलाती है और इनसे बहने वाला रक्त मेरी चेतना में एक दरिया बनाता है। यह लाल दरिया अब काला पड़ चुका है। यह निगल रहा है मेरी स्मृतियों, मेरे कल को। एक दिन यह बांध दरक जाएगा, एक दिन यह बांध दरक जाएगा। आएगा एक प्रलयकारी सैलाब जिसमें मैं डूब जाऊंगा क्योंकि अपने विचारों के रक्त की लहरों पर तैरना नहीं सीख पाया। विडंबना तो यह है कि मैंने बाहर के तूफानों से बचने के 100 हुनर सीखे, लेकिन भीतर के उफनते दरिया का क्या।
दोस्तों भाषा की एक ताकत होती है ना। और बतौर एक आर्टिस्ट जब आपके पास इस भाषा का जादू या इस भाषा का जो ब्लेसिंग है वो तभी आता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए, जिस तरीके से बहुत अच्छा लिखा भाई आपने। क्या करते हो भाई आप? लॉयर है आप? अच्छा, क्या मतलब हाई कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में काम? हाई कोर्ट में। तो क्या फरवरी में बढ़ जाते केसेस, ऐसा कुछ होता है कुछ? ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और परफॉर्मेंस बाकी है, उससे पहले एक कविता मैं सुना देता हूँ, एक नज़्म सुना देता हूँ। आप में से कितने लोग? कौन सी? अरे भाई हाँ, वो वाली नज़्म। हाँ मैं सुनाने उस पे वाला था, पर खैर आपने क्योंकि एक नज़्म है मेरी। आप वैसे कितने लोग मिडिल क्लास है? और जेन्युइनली बताना मिडिल क्लास, ऐसा नहीं कि यूरोप का एक ट्रिप करके आप पक गया, वो वाला मिडिल क्लास नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास आदमी जब उसका दिल टूटता है ना, तब उसके पास ग्रीव करने का या शोक मनाने का वक्त नहीं होता, क्योंकि उसे सुबह उठ के ऑफिस जाना है। तो आदमी कब रोएगा, कब अपना, ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू मूव ऑन, राइट, बिकॉज ही हैज़ टू ब्रिंग फूड ऑन हिज प्लेट। तो एक रिश्ता टूटने के बाद एक मिडिल क्लास आदमी किस तरीके से मूव ऑन करता है, ये उस मौजू पर है कि बाद फिर बिछड़ने के उम्र भर की खामोशी बांध ली है होठों पर। बाद फिर बिछड़ने के उम्र भर की खामोशी बांध ली है होठों पर। ना ही टूट कर रोए, ना ही कम जरा सोए, ना हुई है बातें कम, ना झंझोड़ते हैं गम। दुख पुराना साथी है, चेहरे पे क्यों लाना है? दुख पुराना साथी है, चेहरे पे क्यों लाना है? कल भी घर चलाना था, आज भी चलाना है। दुख पुराना साथी है, चेहरे पे क्यों लाना है? कल भी घर चलाना था, आज भी चलाना है। ख्वाब भी तो रहते हैं बन के बोझ आंखों पर, उम्र भर की खामोशी बांध ली है होठों पर। उम्र में हमारी तुम आओगे तो जानोगे, इश्क के फसाने में तोहमतें नहीं होती, इल्जाम नहीं होते। उम्र में हमारी तुम आओगे तो जानोगे, इश्क के फसाने में तोहमतें नहीं होती। कौन किसका दोषी है की जगह नहीं होती। रोज टूटे सपनों को फिर से बुनना होता है, रोज टूटे सपनों को फिर से बुनना होता है। दिल से आगे जा करके पेट चुनना होता है, दिल से आगे जा करके पेट चुनना होता है। 100 मोहब्बतों में भी हमने शर्त ये रखी, भूले कल की अलमारी कोई भी ना खोलेगा। याद आ भी जाए तो कोई कुछ न बोलेगा। अश्क भर के आंखों में, हाथ रख के जेबों पर, उम्र भर की खामोशी बांध ली है होठों पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं तालियों के बीच स्वागत कीजिए अनिकेत राज का। आइए अनिकेत, आराम आराम से चल के आइए, कोई घाई नहीं है दोस्तों। द एनर्जी वाज हियर व्हेन वी स्टार्ट। लवली, थैंक यू। नहीं, इसको निकालना है। बहुत बेहतरीन, शुभ शुरुआत बोलते हैं इसको। तो हाय गाइस, मेरा नाम अनिकेत राज है। तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो सिंगल है? ऑलमोस्ट सभी। यार एक तो पता है, तुम सिंगल लौंडो से ना चाहे कितना भी पूछ लो कि सिंगल हो क्यों हो, उनका ना हमेशा एक ही जवाब आएगा कि यार अभी प्यार नहीं करना, अभी ये सब नहीं करना, अभी अपने करियर में फोकस करना है। पर साला जब ये भी एक कपल को मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी में से कपल्स को हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखते हैं ना, इनको भी फोमो होता है, ठीक है। और इनको भी ना ऐसे वो पड़ोस वाले अंकल की तरह ये भी जज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आ रहा था रास्ते में ट्रेन से, लोकल से, एंड आई वॉज स्क्रॉलिंग रील्स, तो मैंने एक रील देखा जहाँ पे एक बंदा बता रहा था कि इस वैलेंटाइन भी अगर आप सिंगल हो तो आप दुखी मत मनाओ, आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपने कुछ 7-7,500 रुपये बचाए हैं। मैं खुश हो गया भाई, मैंने 7,000 बचा लिए, ठीक है। मैंने फिर रील आगे देखा, वो कह रहा था कि तुमने चॉकलेट डे पे 300 बचाए, तुमने रोज़ डे पे 100 रुपये बचाए, तुमने टेडी डे पे 1000 रुपये बचाए, एंड बाकी आगे का आप समझ लो, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार आई वॉज लाइक कि नहीं, पैसे तो बच गए, पर अंदर मुझे पता है कि तुम सिंगल बाय चॉइस नहीं, बाय चांस हो, ठीक है। तो
मुझे लगा क्योंकि ना मेरी एक दोस्त है, मेरी एक महिला मित्र है, मैं उसके साथ ना जब भी ऐसे घूमने जाता हूँ, ठीक है, वो मैं मतलब मज़े करते हैं हम साथ में। वो मुझे एक दिन कहती है कि यार अनिकेत तू मेरे साथ ना ज़्यादा मत घूमा कर। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा तुझे मेरे से प्यार हो जाएगा। मैंने कहा है? फिर थोड़ी देर बाद वही मुझसे कहती है अच्छा तू बता मैं तुझे कैसी लगती हूँ। मुझे ना अक्सर समझ में नहीं आता कि मैं उसके साथ फ्रेंडशिप में हूँ, रिलेशनशिप में हूँ या फिर सिचुएशनशिप में हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका जवाब देते हुए उसे कहा अच्छी लगती हो तुम जब तुम मेरे साथ रहती हो, अच्छी लगती हो तुम जब मेरे सर पे यूं हाथ फेर जाती हो, अच्छी लगती हो तुम जब गुस्से में यूं मुंह फुला लेती हो, अच्छी लगती हो तुम जब तुम मेरी फेवरेट लाल पीले रंग की कुर्ती पहनकर आती हो, जब तुम माथे में बिंदी और मेरी दी हुई झुमके लगा कर आती हो, अच्छी लगती हो तुम। अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, सब भूल जाता हूँ तुम्हारे साथ और बस खो जाता हूँ तुम्हारे साथ। तो ना सॉरी हाँ, तो ना ऐसे होते हैं मैन इन लव, ठीक है। मैंने मतलब हम हमेशा कहते हैं कि यार लड़कों को प्यार करना नहीं आता, लड़कों को इजहार करना नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को इंतज़ार करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। मेरे दोस्त ना अक्सर मुझे ऐसे चिढ़ाते हुए उसका नाम लेकर कहते हैं कि भाई वो है, और मेरे भी लड़कों को अक्सर कहते हैं कि उनके डिम्पल्स नहीं आते, उनके चेहरे पे ऐसी स्माइल नहीं आती, पर जब मर्द अपनी पसंदीदा औरत के साथ रहते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल रहती है, उनके चेहरे पे भी डिम्पल्स निकलते हैं, उनके चेहरे पे भी उनके गाल भी लाल हो जाते हैं। तो मैंने उस मर्द के लिए लिखा था यूँ क्यों उसके सहलाने से तुम और से सकते हो, यूँ क्यों उसके मुस्कुराने पे तुम और निखरते हो, कौन है वो जिसकी मोहब्बत से तुम दिल लगा बैठे हो, कौन है वो जिसकी बस एक झलक पे तुम अपना सब कुछ हार चुके हो, कौन है वो। ठीक है, प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, एक मैं आखिरी कविता सुनाना चाहूँगा आपको। तो ऐसे ना मैं ज़िंदगी में काफ़ी आई वाज लाइक कि क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, क्या करूँगा आगे जाकर, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। मैंने अपने पापा को कॉल किया एंड ना अक्सर हम सोचते हैं ऐसा कि हमारे माँ बाप को कुछ समझ नहीं आता, वो सोच मतलब उनको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मैंने बस अपने पापा को कॉल लगाया और उनसे कहा कि पापा मुझसे हो नहीं रहा ये, कैसे करूँगा मैं। तो उन्होंने बस मुझे एक चीज़ कहा जो मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहेगी मेरे साथ, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा तुझे पता है भगवान राम ने भी वो कष्ट झेला है, 14 वर्षों के लिए वनवास गए, राजा छोड़ आम इंसान वन में जिए, लाख चुनौतियाँ उन्होंने, पर उन्होंने हंसकर पार किया, अपने पिता के वचनों को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। पर जब वो भगवान होकर कैसा कष्ट झेल सकते तो तुम तो इंसान हो, तुम्हें किस बात का अभिमान है। सुबह से रात तक सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट। आई एम डन सर। क्या बात है भाई, कोई जोरदार तालियां दोस्तों फॉर। क्या बात है भाई, आप कितने वक्त से सिंगल हो, कितना टाइम हो गया आपको कि आपने पूरी थीसिस बना ली है सिंगल लॉन्डो पे। आपने क्या उम्र बताई अपनी? सही बात है, राइट एज टू नो सो मच अबाउट लव। पर खैर बहुत अच्छा लिखा भाई आपने। मैं जेन्युइनली चाहता एक पॉइंट पे ऐसे बहुत मुझसे 22, 25, 23, 26 साल के आर्टिस्ट, व्हेन आई टॉक टू देम आई हैव अ लॉट ऑफ urge in me to have a debate with them about love and understanding of world and life। लेकिन फिर मैं आमिर इमाम का शेर सुन लेता हूँ कि मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। तो खैर एक नस्ल हम है जो एक तरीके से समझ पाए मोहब्बत को, एक नस्ल आपकी है जो मोहब्बत की डेफिनेशन को एक अलग दौर पर लेकर जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं मोहब्बत के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं बात करने को। तो मैं आई विल टॉक अबाउट व्हाट पीपल माय एज जनरली टॉक अबाउट, व्हिच इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्पिरिचुअल और आइडेंटिफाई विद स्पिरिचुअलिटी इन जनरल और अंडरस्टैंड और बिलीव इन द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी? 2, 3, 4। ठीक है, आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी क्या है मैम? Very cool. Very like the simplest way to define spirituality is finding one own self, right? Anyone else who's into spirituality? किसी ने हाथ उठाया था? आप कोई नहीं उठाएगा ना? मुझे यकीन था। हाँ, आपने उठाया था, प्लीज। Finding yourself and understanding that every individual is different and every individual cannot be like you
राइट हाँ बोलिए ना. बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है मतलब वो एक सेंटेंस में कि ना स्पिरिचुअलिटी वो रियलाइजेशन है जब आपको वो एक्सेप्टेंस आ जाता है और अभी वो तो भाड़ में जाओ सब मतलब मेरे को मेरा वो तो मुझे 10 साल पहले आ गया था मतलब. बट हाँ सही बात है. हाँ इन अ स्वीटर वे. भाड़ में जाओ सब नहीं, दूर जाओ सब. ऐसा क्या, दूर रहो. हाँ आप बोलिए सर, आप अपनी भाषा में बोलिएगा प्लीज़, मैं सुनना चाहूँगा. रिएक्शन ना देके रिस्पॉन्स देना आप सीख जाएं जब टू मेंटेन अ काम विद इन योरसेल्फ दैट द सर्कमस्टेंसेस आउटसाइड यू डजंट अफेक्ट यू इन अ सीवियर वे. आप वहाँ बैठ के इंग्लिश में बात कर रहे हो मतलब आप वो पूरा इंग्लिश में बोल रहे हैं भाई. बहुत सही है. पर यू आर अनअफेक्टेड बाय द वर्ल्ड अराउंड यू इज स्पिरिचुअलिटी. Most of it is collectively what I also believe in, right? I also relate to. I believe that spirituality is दो तरह के लोग यूजुअली स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं. एक तो वो जो पहले से इंक्लाइंड है स्पिरिचुअलिटी में, पीपल हैव रेड अबाउट इट एंड पीपल फॉलो इट. दूसरे जो बहुत गरीब होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं कि यार पैसे कमा के क्या करना है, यूनिवर्स का अलग प्लान है मेरे लिए, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते स्पिरिचुअलिटी को. ठीक है, मैं यूजुअली दूसरे में था कि मैं पैसे कमा के क्या करना है, मरना ही है सबको, क्या फ़ायदा है पैसे कमाने का. बट एज इन व्हेन आई रेड अबाउट स्पिरिचुअलिटी आई केम अक्रॉस दिस टर्म व्हिच आई रियली लाइक, व्हिच इज कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि. हैव यू हर्ड ऑफ इट? अहम ब्रह्मास्मि. अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम द यूनिवर्स. सो द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी revolves around the fact that A, you are just a tiny speck in the universe, a very very tiny speck. B, there is a whole universe inside of you. So you yourself are one universe in this whole concept of a larger universe, right? So when I came across it, I really wanted to write something, and this is what came out of me. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर अपने अंदर. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर अपने अंदर, कितना गहरा नाव उतारो फेंको पत्थर अपने अंदर. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर अपने अंदर, कितना गहरा नाव उतारो फेंको पत्थर अपने अंदर. ले देकर इतनी सी दुनिया और उसमें इतने से तुम, ले देकर इतनी सी दुनिया और उसमें इतने से तुम, सबको हासिल हो जाते हो खुद की खातिर खुद ही गुम. ले देकर इतनी सी दुनिया और उसमें इतने से तुम, सबको हासिल हो जाते हो खुद की खातिर खुद ही गुम. तन के घाव तो भर दोगे चाहे जितने जो दे दे, मन को घाव दिए जिसने वो सारे खंजर अपने अंदर. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर अपने अंदर. दुनिया के 100 लाख तमाशे, दुनिया के 100 लाख तमाशे, दिल के एक को टक्कर क्या. दुनिया के 100 लाख तमाशे, दिल के एक को टक्कर क्या. तुम ही तुमसे बहुत भले और तुमसे ज्यादा बदतर क्या. तुम ही तुमसे बहुत भले और तुमसे ज्यादा बदतर क्या. दुनिया भर से लड़ते लड़ते हारे हारे लौटे हो, अपने आप से लड़कर देखो एक सिकंदर अपने अंदर. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर अपने अंदर. दुनिया भर से लड़ते लड़ते हारे हारे लौटे हो, अपने आप से लड़कर देखो एक सिकंदर अपने अंदर. आस लगाकर रिश्तों से आखिर टूट गए तुम भी. अक्सर ऐसा होता है ना, वी आर सो इन्वॉल्व इन द वर्ल्डली रिलेशनशिप्स दैट वी forget that everything is so temporary, right? आस लगाकर रिश्तों से आखिर टूट गए तुम भी, हाथ थाम कर अपनों का तन्हा छूट गए तुम भी. कब से कोई जादू ढूंढ रहे हो, कब से अपने बाहर तुम, कोई जादू ढूंढ रहे हो कब से अपने बाहर तुम. झाड़ फूक या जादू टोना जंतर मंतर अपने अंदर. आंखों से बस बूंदे टपके एक समंदर. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. विद द सेम एनर्जी कैन वी कीप क्लैपिंग फॉर जागृति. आइए जागृति. हेलो एवरीवन. सो मेरा नाम जागृति है और हैबिटेट पे ये मेरी पहली कविता है, पर मेरी कविता का शीर्षक है एक आखिरी कविता. मैं नहीं जानती कि मेरा आखिरी वक्त कब होगा. मैं नहीं जानती कि मेरा आखिरी वक्त कब होगा, पर मैं ये चाहती हूँ. मैं नहीं जानती कि कौन सा होगी वो आखिरी सुबह जिसमें मैं बारामदे में बैठकर चाय पीऊँगी. कौन सी होगी वो आखिरी दोपहर जिसमें मैं गली में क्रिकेट खेलूँगी.
कौन सी होगी वो आखिरी शाम जिसमें मैं समंदर के किनारे बैठ सूरज को ढलते देखूंगी? कौन सी होगी वो आखिरी रात जिसमें मैं अपने महबूब के साथ चांद देखूंगी? कौन सा होगा वो आखिरी सावन जिसमें मैं झूम के नाचूंगी? कौन सा होगा वो आखिरी गाना जिसमें मैं झूम के नाचूंगी? मैं नहीं जानती कुछ भी, बस मैं इतना जानती हूँ, या शायद मैं इतना चाहती हूँ कि अपने आखिरी वक्त में मैं एक आखिरी कविता लिखूं। एक आखिरी कविता उन सब चीज़ों के बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ। एक आखिरी कविता उन सब चीज़ों के बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ। एक आखिरी कविता तुम्हारे और मेरे बारे में। एक आखिरी कविता जो मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखेगी। मैं एक आखिरी कविता लिखना चाहती हूँ जिसमें मैं वो सब कुछ लिख दूँ जो बताने के लिए मैं आज तक कविताएं लिखती आई हूँ। थैंक यू। क्या बात है, पहली बार आखिरी कविता, बहुत जोरदार तालियां। क्यों जागृति आपको ऐसा लगा कि आपको आखिरी कविता के ऊपर लिखना चाहिए? आर यू समवन हु, ओके आई एम जस्ट गोना आस्क दिस, और थोड़ा माहौल मर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? आर यू समवन हु थिंक्स अबाउट डेथ एज अ कॉन्सेप्ट अ लॉट? हाँ ठीक है, थैंक यू। ओह स्पिल में नारो पुमार ना पुरो मना, क्या बोलते हैं उसको, ना प्रोरम, हाँ जो भी वो, नहीं बहुत सही कॉन्सेप्ट है वो। रोज़ एक कविता लिखो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब कब से लिख रही है जागृति? सिंस 6th grade। और अब you're performing for the first time in Habitat? Okay, but not in Habitat. Not a Habitat open mic. Why haven't you performed at Habitat open mic before? Slow. दोस्तों मुंबई में सस्ता प्लॉट और हैबिटेट में स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हैरी पॉटर देखी है तुमने? किसी ने देखी हैरी पॉटर सीरीज देखी है? गॉबलेट ऑफ फायर होता है उसमें जिसका नाम निकल जाए वो आ जाता है। ये वैसा है, इधर एक 5-6 लोग बैठते पीछे ऐसे क्लोक पहन के। ठीक है, बहुत अच्छा जागृति। कैन वी हियर फॉर जागृति वंस अगेन? When I was talking to him about the idea of love, how a generation has a very different idea of love and a new generation has a different idea of love, I have realized something about myself कि मैं जब 22-23 का था तब मैं क्या लिखता था और अब मैं क्या लिखता हूँ, there is a vast difference। तब जब मेरा दिल टूटता था तब 5 शब्द मेरे हर पोइट्री में होते थे, बेवफा, शराब, मैखाना, क्या और 4-5 शब्द कुछ तो थे ऐसे। सब जितने शब्द जिसमें मैं उस लड़की को ब्लेम कर पाऊँ वो सारे शब्द मेरी कविता में, हर कविता में होते थे। बट वेन यू ग्रो ओल्डर यू इवॉल्व, राइट? यू इवॉल्व एज अ ह्यूमन एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट हाउ यू फीलिंग रादर देन हाउ द पर्सन रियली वॉज। तो आज अगर मेरा कहीं दिल टूट जाता है, जो होगा तो नहीं, पर अगर कहीं टूट जाता है तो एक ऐसी कविता मेरे अंदर से बाहर निकल सकती है कि शहर बदल गया है तुम्हारे बाद, शहर बदल गया है तुम्हारे बाद, सूरज ढल गया है तुम्हारे बाद, सुकून के 4 लम्हों को गम निगल गया है तुम्हारे बाद, सुकून के 4 लम्हों को गम निगल गया है तुम्हारे बाद, राख ही राख है सीने में दिल जल गया है तुम्हारे बाद, राख ही राख है सीने में दिल जल गया है तुम्हारे बाद, एक नदी के सिरहाने बैठे बैठे चांद गल गया है तुम्हारे बाद, एक नदी के सिरहाने बैठे बैठे चांद गल गया है तुम्हारे बाद, एक शायर बचा था मेरे अंदर, एक शायर बचा था मेरे अंदर, वो भी निकल गया है तुम्हारे बाद, एक शायर बचा था मेरे अंदर, वो भी निकल गया है तुम्हारे बाद, तुम थे ख्वाब की मानिंद मगर, तुम थे ख्वाब की मानिंद मगर है हमराही हम सफ़र, कोई ख्वाब कुचल गया है तुम्हारे बाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कैन वी कीप द एनर्जी, can we bring it back to where it was and hear it for Shresha Raut? She is coming बहुत ज़्यादा पीछे से, तो please we'll have to keep clapping until she is on stage. Shresha आराम से चलना, इनको ताली बजाने दो थोड़ा, ये लोग आलसी होते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रीशा। और मुझे यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ कि प्यार का महीना चल रहा है, वरना मैं कोई और ही कविता बोलने वाली थी। तो जब मैं 17 साल की थी तब मुझे प्यार हुआ था, तो तब मैंने वो कविता लिखी थी, वो आज प्यार के महीने पे बोलना चाहूँगी कि
हाँ हमें प्यार हुआ है, हाँ हमें प्यार हुआ है, एक ही शख्स से बार बार हुआ है, हाँ हमें प्यार हुआ है। उसके दीदार का तीर दिल के यूँ आर पार हुआ है, भटकते हुए बेसब्र दिल का इस कदर शिकार हुआ है। बेइरादा बेकसूर दिल पे बेशक वार हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। किसी बेघर को घर का हो जैसे, किसी बेघर को घर का हो जैसे, हमें इंतज़ार तुम्हारा हुआ है, हर फासला मुकम्मल हो जाए यह इजहार हुआ है। तुम्हारे खातिर ख्यालों का यूँ बाज़ार हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। एक कविता मैंने लिखी थी कि आजकल दुनिया बहुत बुरी होती जा रही है, अच्छाइयाँ बहुत कम है और बुराइयाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक ऐसा जहाँ बसाया है जहाँ सिर्फ अच्छाइयाँ है। तो लिखा था कि ख्वाहिशों का बसाया है मैंने अपना एक शहर, ख्वाहिशों का बसाया है मैंने अपना एक शहर, वही रहती हूँ मैं सुबह शाम दोपहर। वहाँ है ही नहीं कोई कायदा कानून, वहाँ है ही नहीं कोई कायदा कानून, है तो बस सपनों का जुनून और सुकून ही सुकून। इस हकीकत की दुनिया से परे है वो दुनिया, वहाँ कोई गिनाता नहीं मुझे मेरी खामियाँ। नर नारी में भेदभाव नहीं है, धर्म जात का विवाद भी नहीं है, बरसों पुराने चले आ रहे निरर्थक रीति रिवाज भी नहीं है। बंद नहीं हूँ मैं वहाँ चार दीवारों में, नहीं कैद हूँ लोग क्या कहेंगे जैसे सवालों में। गुलाबी आसमान है हर तरफ प्यार ही प्यार है, दो चाहने वालों के बीच ना ही कोई दरार है। जो तन्हाई में गुजरे वहाँ ऐसी कोई रात ही नहीं, और डर डर के जीना पड़े ऐसी कोई बात भी नहीं। ऐसा कुछ ख्वाहिशों का बसाया है मैंने शहर, ऐसा कुछ ख्वाहिशों का बसाया है मैंने शहर, अब हकीकत में जीना मुश्किल है ज़िंदगी भर, अब हकीकत में जीना मुश्किल है ज़िंदगी भर। तो जैसा हमारे होस्ट ने कहा था कि मीडियोकर मिडिल क्लास लोगों को टाइम नहीं रहता है शौक़ मनाने के लिए, क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी कमा कर लानी पड़ती है। पर जब मुझे प्यार हुआ था मैं तो 17 साल की थी और मेरे पास वक्त ही वक्त था, 11th ग्रेड में थी। तो मैंने तो बहुत शौक़ मनाया है मेरे इसका। तो मैंने लिखा था कि मासूम सी उम्र थी मेरी, मासूम सी उम्र थी मेरी, मैं बस जवान ही हुई थी। प्यार व्यार की समझ नहीं थी, बस किताबों में बातें पढ़ी थी, और सबसे हंसकर बात करना हुनर था मेरा। न जाने मेरी हंसी में उसको क्या कहानी मिली थी, उसको पहली नज़र में ही मैं पसंद आ गई थी। उसने इश्क के इजहार की पर्ची उसके दोस्त के सहारे भेजी थी। मैंने भी उम्र इश्क करने की है सोचकर हाँ कहा। पहले प्यार नहीं था फिर प्यार हुआ, उसको तो था ही फिर मुझको भी हुआ। मेरा प्यार बढ़ता गया और फिर उसका कम हुआ। मेरा प्यार चरम सीमा तक पहुंच गया और उसका ख़त्म हो गया। और फिर एक उम्र थी जब सबसे हंसकर बात करना हुनर था मेरा। फिर मैंने हंसना और बात करना दोनों ही छोड़ दिया। उसके बाद का मेरा एक अरसा तन्हाई में गुजर गया। लोग कहते हैं एक शख्स क्या तुझको छोड़ के गया, तूने तो जीना ही छोड़ दिया, तूने तो जीना ही छोड़ दिया। थैंक यू। Can we hear for Shesha once again? Such a beautiful performance. शेषा भी कितनी सिंगल है आप समझ सकते हो। वो भूल गई थी कि फरवरी का कुछ मतलब होता है। खैर शेषा आप जब हाँ बोल रही थी कुछ। मैरिड लोग का तो वो तो जानबूझ के भूलना चाहते हैं ना, वो अलग है। वो तो चाहते हैं कि क्यों याद रहे हमें ये, पर ठीक है। पर शेषा आप जब 17 की थी तब आपको पहली बार प्यार हुआ था, क्या बात है। और कितना वक्त चला वो, और अब उसका शौक मना रही थी? 2 महीने। ठीक है दोस्तों, मुझे पहली बार प्यार हुआ था 5th ग्रेड में। आई एम नॉट इवन किडिंग। मेरे को जबरदस्त वाला प्यार हुआ था, ठीक है। और वो प्रॉपर 10th ग्रेड तक चला था वो प्यार। एनीवन हु इज फॉल इन लव एट अ वेरी वेरी यंग एज, व्हाट इज द यंगेस्ट दैट यू फॉल इन लव? 8th ग्रेड। और कोई उससे कोई नहीं। मैं 5th ग्रेड में प्यार हुआ था गाइस, और इतना क्रेजी प्यार था वो। तो वो उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था स्कूल्स में कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। उस टाइम पे कुत्ता बना के मारते थे, ठीक है, प्रॉपर मारते थे। मेरे टाइम पे मैं ना इतना
इतना मारते थे कि तुम्हारे अंदर से डर ही निकल जाता है मार खाने का, फिर तुम बस एक पत्थर बन के मार खा रहे हो, वैसा होता था। तो वैसा था कि वो प्रॉपर टीचर्स पेट लड़की थी, वो हेड मास्टर की केबिन में रहती थी, सुबह असेंबली होती थी जब बॉयज साइड अलग होता था, गर्ल्स साइड अलग होता था, और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ उसको हेड मास्टर की केबिन में, और मैं कि इसको इंप्रेस करने के लिए क्या करूँ, मैं कूल बनूंगा, मैं प्रेयर नहीं बोलूंगा, मैं बकचोदी करूंगा इधर, मैं मजाक करूंगा इधर, ठीक है। तो मैं किसी की पैंट खींच रहा हूँ, किसी को पत्थर से मार रहा हूँ मॉर्निंग असेंबली में, और मेरे हेड मास्टर ने देख लिया और मुझे अंदर बुलाया और उसके सामने मुझे 3 मारे खींच के साथ। द ब्यूटी ऑफ दैट स्लैप वॉज कि हेडमास्टर मुझे यहाँ से मार रहा है, वो यहाँ खड़ी है, और जब मार रहे हैं मेरा फेस ऐसे जा रहा है, और मैं जेन्युइनली चाह रहा हूँ कि 3-4 और मिल जाए, बस मैं ऐसे देखूं बस। वो गाना तब था नहीं, पर मेरे दिमाग में अगर होता तो मेरी हर मन मानी, बस वैसे चल रहा था मैं। पर 10 तक मैं उसके साथ प्यार में था, पर फिर हमारे रास्ते अलग हो गए। फिर मुझे समझ में आया कि प्यार नहीं था। जब मेरे स्कोर्स आए तब रियलाइज हुआ कि कुछ नहीं था ये। पर इट वॉज ब्यूटिफुल। आई थिंक first love at a very young age is always beautiful because your ideas of love are pointless. You have no idea about love, so you create your own definition about it, and when you live your own definitions about love, it's usually the beautiful ones, right? उसके ऊपर क्या ये कविता है मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ, तो like I was saying पिछली बार कि you tend to change after a certain age, right? When you grow up, your ideas about love change, your definitions about love change, you start changing as a human. For someone who's gone for a very very long time and who's coming back बहुत time बाद, तब आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाती है ना? Anyone who's ever been in a long distance relationship? कोई रहा है पहले long distance में? मैं ही रहा हूँ, मैं ही एक बकवास इसमें रहा हूँ। बट when I look back at a long distance relationship, when I see someone coming back, this is what I feel about the world. तुम्हारे आते आते सब बदल जाएगा। कोने कोने में कचरे का ढेर, मोहल्ले में मिट्टी का आखिरी घर, और मेरा गुस्सा सब जल जाएगा। तुम्हारे आते आते सब बदल जाएगा। तुम्हारे आते आते रास्ते पक्के होंगे, पेड़ों पर नंबर होंगे, धुएं में हवा होगी और ख्वाबों के धक्के होंगे। हीर रांझा मोहब्बत की उरूज पर नहीं, नाम मिल पाने की बहस में होंगे। उदास रास्तों में गालों पर पसीना होगा और आंसू आंखों की कफस में होंगे। तुम्हारे आते आते सब बदल जाएगा। नींद सड़कों पर भटकती रहेगी, सुकून फटी हुई जेब पर पड़ते धागों में होगा। आर्ट यादों की गलियों से निकलकर बेमानी बातों के फुटपाथ पर चलता हुआ दफ्तर में कंप्यूटर की एक्सेल के खाली खाकों में होगा। तुम्हारे आते आते मकान आधे गिरवी हो जाएंगे, जिम्मेदारी कंधों को झुकाने लगेगी। छोटी शीशी में जहन के मसलों का हल बिकेगा और दुनिया अपनों से ज्यादा पराये रिश्ते निभाने लगेगी। तुम्हारे आते आते सब बदल जाएगा। गली गली में बैठे फैज, गालिब, साहिर और प्रेमचंद, जिनकी आवाज बुलंद होनी थी, सो रहे होंगे। गली गली में बैठे फैज, गालिब, साहिर और प्रेमचंद, जिनकी आवाज बुलंद होनी थी, सो रहे होंगे। गाड़ियों के कद बढ़ते रहेंगे, दिल मगर छोटे हो रहे होंगे। और मैं अपने जुनून और अपनी मोहब्बत की लाश पर चलता हुआ, तुम्हारे तसव्वुर के कूचों में गिरता संभलता हुआ, धुंध के मानिंद भीड़ के बीचों बीच खो जाऊंगा। तुम्हारे आते आते मैं भी शहर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। 3 more performers to go. Can you have the same energy that we started off with? Can we hear it for सूरज? आइए सूरज, बहुत पीछे से आ रहे हैं। तो मैंने दुनिया में ना ठग को बहुत देखा है। तो उनके लिखा था कि दुनिया के सागे पाप कह के, कि दुनिया के सागे पाप कह के तब तू चला था कुंभ नहाने, कि देख तेरा क्या हाल करेगा जब वो अपनी रचनाएं रचेगा। तू जब जब डुबकी लगाया था, हाँ तू जब जब डुबकी लगाया था, तू गंगा मैगी करते आया था। तेरे कदम जहाँ जहाँ पड़े थे, हाँ तेरे कदम जहाँ जहाँ पड़े थे, तेरी लिखी किस्मत वहीं रहे थे। ये जो झूठा दिखावा तू करता है, हाँ ये जो तू झूठा दिखावा करता है, ऊपर वाले को जो छगता है, उसे पता है तेरे मन में छग है। हाँ उसे पता है कि तेरे मन में छग है, जिसमें बीता हुआ तेरा कर है। एक ना एक दिन इसका भी हिसाब होगा, हाँ एक ना एक दिन इसका भी हिसाब होगा। एक ना एक दिन तेरा भी अंत होगा, कि एक ना एक दिन तेरा भी अंत होगा। और इससे जुड़ी कुछ 2 लाइनें हैं कि राम नहीं बन सकते, हाँ राम नहीं बन सकते तो रावण भी मत बन जाना। बात आए जब मान और सम्मान पर, हाँ बात आए जब मान और सम्मान पर, तब अपनों से बिगड़ जाना।
और एक ना ऐसी एक पोएट्री लिखी थी कि मैंने आज से 6 साल पहले लिखी थी कि ज़िंदगी की खोज में चल पड़ा हूँ मैं कहीं, कि ज़िंदगी की खोज में चल पड़ा हूँ मैं कहीं, ना दिखी तू कभी फिर भी सांसें चल रही, कि साथ तेरा छूट गया नाता तुझसे टूट गया, कि साथ तेरा छूट गया नाता तुझसे टूट गया, खो गया था मैं कहीं था जहाँ कभी सही, कि मंजिलें भी दूर है राह कभी दिखी नहीं, कि मंजिलें भी दूर है राह कभी दिखी नहीं, किस मोड़ पे आ गई ज़िंदगी बता सही, हूँ खड़ा मैं वहीं जहाँ कभी थी तू मेरी, हाँ हूँ खड़ा मैं वहीं जहाँ कभी थी तू मेरी, ख्वाब अधूरा रह गया हो सका पूरा नहीं, अपनों ने मुँह फेर लिया साथ मेरा दिया नहीं, कि ज़िंदगी की खोज में चल पड़ा हूँ मैं कहीं, कि ना तमन्ना अब रही फिर किसी को चाहने की, हाँ ना तमन्ना अब रही फिर किसी को चाहने की, इस मतलबी दुनिया में फिर किसी से दिल लगाने की। थैंक यू सो मच। और एक ना थैंक यू और एक ना मैंने कि मुझे इतना यकीन है कि जब कोई साथ मेरे हो चाहे ना हो पर ऊपर वाला ज़रूर होगा, तो मैंने उनके लिए लिखा था कि मेरा खुदा भी मेरे साथ नहीं, मेरा खुदा सॉरी कि मेरा खुदा मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है, कि मेरा खुदा मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है, मैं जब भी कभी ज़िंदगी में गिरूंगा वो मुझे संभालने आएंगे, मैं जब भी कभी भटकूंगा वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगा, कि हाँ मैं ये भी जानता हूँ जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगा तो एक बस मेरा खुदा ही मेरे साथ होगा। थैंक यू। और एक दो टू लाइनर लिखा था कि मैंने कि सब्र पे लिखा है, कि मतलब हम कभी कुछ ना हमारे साथ कुछ एक लिमिट से ज़्यादा होता है, ताकि हम एक सुनने की एक कुछ क्षमता होती है, जब कोई हद पार कर दे तो उसके लिखा था कि जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा, हाँ जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा उस दिन मेरा हर अपना मुझसे उठेगा। और एक ये लास्ट है कि इस पे लिखा था कि सपने के ऊपर लिखा था कि एक सपना टूट चुका है, हाँ एक सपना टूट चुका है दूसरा मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे हो जाए मेरे अपने ही खिलाफ ना क्यों, हाँ चाहे हो जाए मेरे अपने ही खिलाफ ना क्यों, इस बार मैं अपना सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। जोरदार ताली यार भाई के लिए, बहुत अच्छा सुना। सब्र की बात की, मुझे अमर इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया, बहुत पसंद मुझे शेर। दरख्त का मतलब होता है पेड़, है ना, कि वहशत के कारखाने से कोई ताज़ा गज़ल निकाल, वहशत के कारखाने से कोई ताज़ा गज़ल निकाल, ऐ सब्र के दरख्त मेरा मीठा फल निकाल। इसी के साथ लास्ट टू परफॉर्मर्स ऑफ द इवनिंग, द नेक्स्ट वन हैज हर पेन नेम आई थिंक हियर। कैन वी गिव इट अप फॉर गहरी स्याही? आइए, शी इज नॉट ऑन स्टेज येट, कैन वी हियर इट फॉर हर? हाय, गहरी स्याही मेरा पेन नेम है, राइट। तो अगर इस सैकड़ों की गोल मटोल दुनिया में आपको ऐसा कोई मिल जाए जो आपको समझ ले बिल्कुल वैसे जैसे कि आप हैं, तो क्या बात है। आपकी बातें, इरादे या हरकतें जो भी हों, सब कुछ उसके पल्ले पड़ जाए। आप गुब्बारे सा मुंह फुलाएं पर उसके माथे शिकन भी ना आए, जैसे आपकी अड़बंगी दुनिया में सब सलीके लग जाए। जनाब, ऐसा तो कोई संत भी कहाँ से लाए। तो क्या है ना कि रिश्तों में सोच मिले या सल्यूशन मिले, ये ज़रूरी तो नहीं, पर दिलों के भाव मिले ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी इस बड़ी सी दुनिया में एक छोटा सा दिल मिल गया है, तो उसे प्यार में रखिए, पास में रखिए। तो इसी बात पर मैंने आई हैव रिटन अ पीस जिसे मैं 2 मन 1 भाव कहती हूँ। और वो शुरू करने से पहले मैं 2 चीज़ें बताऊँगी। ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, भारत की सबसे बड़ी है। एंड माजुली, एक आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र में है, रिवर के बीच एक आइलैंड है। 2 मन 1 भाव। कभी कभी लगता है कुछ बातें भाव सी होती हैं और भावों के तोल के शब्द मेरे पास नहीं। वो भाव इस माटी पुत काया में भवसागर से उमड़ते हैं, मेरे शिव से मंतल में,
मेरे शिव से मंतल में मंथन फेर जाते। वो मंथन उबाल जब नैन किनारे आए तो जैसे काश इस नील पृथ्वी पर केवल एक मैं होती और इस पानी को मेरा कोई अंश ना रोकता। काश इस नील पृथ्वी पर केवल एक मैं होती और इस पानी को मेरा कोई अंश न रोकता। तब मेरे भाव ब्रह्मपुत्र से बहते और मैं उस धारा बीच मझोली पर एक अखंड खड़ी रहती। माँ, क्यों तूने मेरे मन को इस काया अंदर समेटा? बोल। समेटा जो भला भी था, पर फिर इस मन को पागल परिंदे सा क्यों छोड़ा? बोल। क्या कोई दो मन एक भाव का एक ही वर्णन नहीं देते? क्या पूरे होने पर काच काया और मखमल खाल संग नहीं रहते? और क्या सच में कुछ मानवीय चीजें इस मन मुंडेर पर यूं कुंडली मार बैठा करती है? मैं नहीं मानती इन बातों को। मेरे बरामदे इन चीज़ों का कोई अर्थ, कोई स्थान नहीं। मन के नीचे और मन के बाहर के भाव को कोई प्राण नहीं। तो अगर तुम्हें ये डोर सोना सांच सी लगे तो बस नंगे पैर, रेशम झोले मन और उगड़े भाव हाथ लाना, तुम्हारी चाय की केटल और 200 साल साथ लाना। तब दो मन, एक भाव और एक वर्णन होगा। तेरे मेरे तत्व का सार क्रूड कंचन होगा। तुम हल्की छाती खुली मुट्ठी शर्त मान कर आना। अगर मन तानपुरे को तान लगे तो नील पृथ्वी छलांग मार आना। मैं इस धारा बीच माजूली पर एक अखंड खड़ी रहूंगी। बस तुम चाय की केटल और 200 साल साथ लाना। क्या बात है, जोरदार तालियां गहरी साही के लिए। अपना नाम नहीं बताया अपना। योगिता कब से लिख रही है आप? योगिता बहुत खूबसूरत लिखती है आप। 5-7 साल हो गए। जैसा मैंने कहा कि भाषा का जादू जो है, आपको किसी को पढ़कर या सुनकर ही समझ में आ जाता है कि इस इंसान ने कितना पढ़ा होगा, तब जाकर ये भाषा उन्होंने अपनाई है या इस भाषा ने उन्हें साथ दिया है उनका कविताओं में। क्या पढ़ती है अब? अगर आप इफ़ यू हैड टू रिकमेंड 3 बुक्स टू पीपल सिटिंग हियर, व्हाट वुड यू रिकमेंड? ओके, गुलजार साहब को पढ़ा है आपने? हाँ, राइट। आप कहाँ से हैं वैसे? राजस्थान से है आप। तो ये भी एक रास्ता होता है कि आपकी भाषा इतनी अच्छी हो, क्योंकि मुंबई आपकी भाषा अक्सर बिगाड़ देती है। मुंबई आपको तेरे को मेरे को पे लेके आ जाती है ना। मुंबई में वो जो भाषा की सभ्यता होती है वो अक्सर बचती नहीं है, पर बाकी सब मुंबई में बढ़िया है। मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ लफड़ा होगा। अच्छा, ठीक है। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग ही है फिर भाषा की आपको। मतलब मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कि इनके पास वो भाषा कहाँ से आती है, उतना ही मेरे ऑप्शंस कट करती जा रही है। ये पहले शांत हो सकती थी, लेकिन ये चाहती कि मैं ऐसे ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ जहाँ पर मेरे पास जवाब ना हो। सर आप पढ़ते हैं क्या? अगर आपको 3 बुक्स रिकमेंड करनी है प्लीज़ मेरी इज्जत रखिए। संसद से सड़क, हाँ मैंने सुना इस बारे में। हाँ, क्या बात है। हाँ, क्या बात है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सच में, अगर आप इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट राइटिंग, प्लीज़ रीड बुक्स एंड प्लीज़ रीड द बुक्स दैट आर बीइंग सजेस्टेड हियर। बहुत खूबसूरत उन्होंने किताबों का नाम लिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ इनसे मिलिए और इनसे ज़रूर पूछिए। वी कम टू द लास्ट परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग। Can we have the energy that we started off with? Can we maintain that for the last performance? Can we give it up for R.K. Mishra ji? आइए मिश्रा जी। सभी को शुक्रिया। मैं पहली बार ये हाइब्रिड मंच पे आ रहा हूँ। मेरा नाम R.K. मिश्रा है और बहुत साल पहले मैंने एक सूफ़ी कुछ लिखा था, उसके बाद तो फिर मैंने लिखना ही छोड़ दिया। लगभग 20 साल के बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया है। मतलब जब इंसान सारी दुनिया से रूठ जाता है, अपने आप से टूट जाता है, तब कुछ शब्द उसके जहन से निकलते हैं
और उस जहन से निकलते हैं तो फिर सिर्फ ऊपर वाले को ही याद करता है। जैसे भले ही नक्श क्यों ना करे दिल लगी, भले ही नक्श क्यों ना करे दिल लगी, पर मचलना मुझे थिरकाना मिले। थिरकाना मतलब थिरकना, घूमना टहलना। इश्क मेरा खुदा, इश्क मेरा खुदा, इश्क मज़हब मेरा, इश्क मेरी बंदगी, इश्क मुझे फ़कीराना मिले, इश्क मुझे फ़कीराना मिले। बहुत चला मैं ज़माने के पीछे, बहुत चला मैं ज़माने के पीछे, अब तन्हा ले चला हूँ काफ़िला। बहुत चला मैं ज़माने के पीछे, अब तन्हा ले चला हूँ काफ़िला। ख़त्म हो न हो चाहत का सफ़र, ख़त्म हो न हो चाहत का सफ़र, अब ना रुकेगा ये सिलसिला। भले ही नक्श क्यों ना करे दिल लगी, पर मस्तियाँ मुझे सूफियाना मिले। अब दूसरा जो सुनाने जा रहा हूँ छोटी सी है। ये एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कैसे करता है कि दुनिया उसके जो खिलाफ होती है, तो आपस में वो लोग एक चर्चा कर रहे हैं। एक तेरी कहानी हो, एक तेरी कहानी हो, एक मेरा फसाना हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे खिलाफ जमाना हो। एक तेरा नगमा हो, एक मेरा तराना हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे खिलाफ जमाना हो। एक तेरी फिक्र कर लूं, एक तेरी फिक्र कर लूं, बस तेरा जिक्र कर लूं। एक तेरी फिक्र हो, एक मेरा बहाना हो। हर पल तेरे संग हूँ, हर पल तेरे संग हूँ, बस खुशियों के रंग हो। एक तेरी ज़बानी हो और एक मेरा शुक्राना हो। और एक छोटी सी जो आपको पेश कर रहा हूँ, ये भी लड़का लड़की को प्रपोज करता है। ये प्रपोज तो नहीं करता है, सोचता है ख्यालों में, सोचता है ख्यालों में। मेरा साथी मेरा हमदम बन जाना, मेरा साथी मेरा हमदम बन जाना, मेरे जख्मों का तुम मरहम बन जाना। तेरी सांसों में यार खुशबू की रवानी, तेरी सांसों में यार खुशबू की रवानी, मेरी जाना मेरी जानम बन जाना। सुनिए आप लोगों के लिए, मैं तो बस तेरा दिल से होना चाहूँ, मैं तो बस तेरा दिल से होना चाहूँ, मेरी खुशियों का सरगम बन जाना। तेरे बिन सूना है ये दिल का आंगन, तेरे बिन सूना है ये दिल का आंगन, मेरे आंगन की तू दुल्हन बन जाना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, जोरदार तालियां मिश्रा जी के लिए। जो रेंज इन्होंने कवर किया है, सूफियाना इश्क से वैलेंटाइन तक का एक बहुत खूबसूरत रेंज कवर किया है। इसी के साथ दोस्तों वी कम टू एंड ऑफ वन मोर ओपन माइक एट हैबिटेट, पोएट्री ओपन माइक। लाइक आई टोल्ड यू, पोएट्री ओपन माइक्स हैपन ऑन संडेज 1 to 3, 3 to 5 एंड मंडेज 7 to 9, 9 to 11। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव ब्लॉक पार्टी दैट हैपेंस एवरी वेंसडे। एवरी वेंसडे वी ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स। so मुशायरा हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, your storytelling हो गया, and there is a special show by someone, right? Please check out Creative Block Party also on Instagram. और क्या बोलना है? Can we start clapping now for all of you guys who come to perform, for all the audiences who come to support, for Team Habitat for putting up such a good show.
आपको आपके पिक्चर्स और वीडियोस आपके डीएम में आ जाएंगे. प्लीज़ हर्ष को या किसी को स्पैम ना करें क्योंकि उनके पास नहीं आते हैं, आपके पास अपने आप आ जाएंगे. इसी के साथ माय नेम इज़ पार्थ. इट वाज ग्रेट टू बी योर होस्ट. I'd request all the performers to come on stage for a group picture, please. Thank you very much.